السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عرفان سلیریہ اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ سوشل میڈیا میں میری ایک سیریز ہے ای چپا، جس میں مختلف ہیلتھ پروفیشن کے ساتھ انٹرویو کر کے مختلف جو میڈیکل کمپنی کی اس کے اوپر اویئرنیس پلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اسی سلسلے میں آج کی جو ہماری ای چپا سیریز کے گیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر صالح محمد ہیں، جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ہے سیالکوٹ میڈیکل کالج میں، اور گزشتہ 30-40 سال سے اس پیشے کے ساتھ منسلک ہیں، اور سیالکوٹ کے بہت ہی ریناؤنڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں۔ آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہیپاٹائٹس کیا ہے، کیسے پھیلتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہے، اس کی ٹریٹمنٹ آپشنس کیا ہیں۔ تو آپ اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، کیا ہے بھائی جان، ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وہ ٹائم دیا، اور یہ ہماری ڈیزیز ہے ہیپاٹائٹس، اس کے اوپر اویئرنیس پلانے کی جو میری کوشش ہے اس کا آپ حصہ بنیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے جاننے والے کو یہ بتائیں کہ ہیپاٹائٹس بیسیکلی ہے کیا؟ ہیپاٹائٹس جو ہے نا، یہ لفظ بنا ہے ہیپیٹک سے۔ ہیپیٹک لطینی زبان کا لفظ ہے جو میڈیکل زبان میں استعمال ہوتا ہے، میڈیکل کی کتابوں میں۔ جب اس کے آگے ITS لگ جاتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے انفلاممیشن آف لیور۔ انفلاممیشن عام زبان میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے سوجن ہے لیور کی، تو جو اگر آپ اردو میں کہیں تو لوگ جو عام زبان میں پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے اس کو کہیں کہ یہ لیور کی سوجن ہو گئی ہے، ہیپاٹائٹس ہو گیا، لیور کی سوجن ہے، اس کی انفلاممیشن ہے۔ پھر اس کے آگے اس کی ٹائپ ہے، ٹائپ جو ہوتی ہے ہیپاٹائٹس کی جو ہوتی ہیں وہ وائرل بھی ہوتی ہیں، کیمیکلس بھی ہوتے ہیں، ڈرگس بھی ہوتی ہیں۔ اور وائرل کے بارے میں بہت کنسرن ہے لوگ، تو جو اس کے وائرل ہے، وائرس کے اگر کہیں A ہے، B ہے، C ہے، D ہے، E ہے، تو یہ وائرس جو انوینٹ ہوئے اس کے حساب سے ان کا نام دیتے گئے۔ جو وائرس پہلا وائرس جو لیور کو ڈیمیج کر رہا تھا جب انوینٹ ہوا، اس کا نام ہیپاٹائٹس A ہے۔ جب B کا پتہ چلا تو B ہے، پھر C ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک وائرس کی سٹیجز ہیں، پہلے مائلڈ ہے، پھر زیادہ ہو گیا، پھر زیادہ ہو گیا، جو لوگ عام لوگوں کو یہ ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ آل ٹوگیدر یہ ڈفرینٹ وائرس ہیں، ڈفرینٹ ان کی طرح سے یہ لیور کو انوالو کرتے ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے ہر وائرس اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن میں ڈفرینٹ ہے، ٹریٹمنٹ اور اس کی پروفلیکسس جو ہوتی ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہے۔ تو ہیپاٹائٹس A جو ہے، یہ ہیپاٹائٹس A وائرس اس کو کہتے ہیں۔ تو ہیپاٹائٹس A وائرس جو روٹ آف ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جس سے یہ مریض کو پھیلتا ہے، اس کو کہتے ہیں اورو فیکل روٹ ہے۔ کہ یہ سٹول میں جو بیمار پیشنٹ ہے اس کے یا کیریئر ہے، کیریئر وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو بیمار تو نہیں ہوتا، اس کے اندر وائرس ہوتا ہے، وہ دوسروں کو لگا سکتا ہے، یا بیمار ہو یا کیریئر ہو تو اس کے سٹول سے یہ وائرس آئے گا پخانے کے راستے۔ تو وہ پانی جو ہم پیتے ہیں یا برتن کسی کو لگ گیا یا اس طرح وہ پانی کے ذریعے ہمارے منہ تک پہنچ گیا، پبلک کے منہ تک پہنچ گیا، اس کا نام ہوتا ہے اورل فیکل روٹ۔ اس فیکل روٹ سے کوئی وائرس ڈسچارج ہوا ہے یا بیکٹیریا یا کوئی جراثیم، تو اورل کیوٹی ماؤتھ تک پہنچ گیا، اس کو کہتے ہیں اورو فیکل روٹ۔ اس کا اورو فیکل روٹ ہے جو بیمار کے، تو اس طرح یہ پھیلتا ہے، یعنی گندے پانی سے پھیلتا ہے۔ زیادہ امپورٹنٹ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ پانی آپ ابال کے نہیں لیتے، فلٹریشن والا پانی نہیں لیتے، آپ برتن صاف نہیں رکھتے، تو اس طرح ایک دوسرے کو پھیلتا ہے یہ اورو فیکل روٹ کے ذریعے۔ تو یہ کرتا کیا ہے ہیپاٹائٹس سے؟ یہ جرکان کرتا ہے، آنکھیں پیلی ہوتی ہیں، پیشاب پیلا ہوتا ہے، بندے کو بخار ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی، میٹیلک ٹیسٹ ہو جاتا ہے، تو لیور والی جگہ درد ہوتی ہے اس کو۔ تو اگر نہ ٹریٹ کیا جائے، آرام نہ کیا، ریسٹ نہ کیا جائے، پراپر ٹیک اپ نہ کیا جائے، تو پھر یہ فلمنٹ فیلر میں بھی کئی دفعہ مریض چلا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ مائلڈ صرف جانڈس کے بعد عام طور لوگ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہیپاٹائٹس B جو ہے، یہ اس کا جو روٹ ہے اورو فیکل نہیں ہوتا، یہ بلڈ کے تھرو پھیلتا ہے، سلائیوا کے تھرو پھیلتا ہے، سویٹ کے تھرو پھیلتا ہے، اور بلڈ کے تھرو پھیلتا ہے۔ بلڈ کا مطلب ہے کہ گندی سیج کسی کا ہیپاٹائٹس B کا مریض ہے
उसको आपने स्टरलाइज नहीं किया, डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल नहीं की, उस तरह फैलता है। ब्लड के थ्रू इस तरह फिर फैलता है कि कोई आप ब्लड किसको चाहिए, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड बैंक ने अच्छी तरह से वो ब्लड बैंक को स्क्रीन नहीं किया, उसके टेस्ट नहीं। आजकल कानून बना हुआ है कि जब भी ब्लड लगना है, ब्लड बी और सी की स्क्रीनिंग होती है, उससे पाक हो तो फिर लगाते हैं। अगर कमज़ोर तरीके से आप कर लें आजकल भी, तो अगर मतलब रिपोर्ट में आ गया नेगेटिव है लेकिन ब्लड में वायरस मौजूद है तो दूसरे बंदे को लग जाएगा। तो इस तरह ये मतलब ब्लड के थ्रू या मतलब गंदी सिरिंज इसी तरह मरीज़ को टच हुई है वो आपने स्टरलाइज बकायदा नहीं की, लेकिन आजकल डिस्पोजेबल सिरिंज लोग इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस थोड़ी सी बेहतर है, हजाम है उसकी उस तरह की चीज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं शेविंग के लिए, आप दूसरे आदमी को या डिस्पोजेबल इस्तेमाल करें या दूसरे आदमी को सेम हजाम है तो वो इसको स्टरलाइज करे, सेपरेट में प्रॉपर वॉश करके फिर लगाए तो तब ठीक है। तो इस तरह एक दूसरे को तो मतलब डेंटल सर्जन से ये कॉमन प्रैक्टिस है कि दूसरे को लग जाए, डिस्पोजेबल किट इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये है ब्लड के थ्रू ये फैलता है। और फिर ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी एक दूसरे से फैलता है। फिर एक मतलब मरीज़ है मेल या फीमेल तो वाइस एंड वर्सा एक दूसरे को लग जाएगा। फिर ये वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है कि माँ है उसको हेपेटाइटिस बी है तो बच्चा डिलीवर करेगी, डिलीवरी के प्रोसेस में वो उसको फैल जाता है, लग जाता है तो फिर उसको बच्चे को 90% बल्कि हेपेटाइटिस बी इस तरह फैलता है। तो इसी तरह इसकी हिफाजत करनी है आपने, फिर स्क्रीन शुदा ब्लड अच्छी जगह से वो तो लगाया जाए, डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल की जाए, डेंटल सर्जन के पास जाए तो डिस्पोजेबल किट इस्तेमाल की जाए, कोई ऑपरेशन हो तो मतलब स्टरलाइजेशन का इंतज़ाम ठीक हो, ऑपरेशन थिएटर ठीक हो, सामान ऐसा हो कि जो बिल्कुल स्टरलाइज हो, किसी भी मरीज़ को लगा हुआ तो बाद में उसका मतलब स्टरलाइजेशन प्रॉपर जो एथिक्स के प्रिंसिपल है प्रॉपर उनको इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह ये रुक जाता है। हेपेटाइटिस बी की जो पेशेंट को प्रॉब्लम होता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है जिसमें डीप जॉन्डिस होता है जैसे हेपेटाइटिस है, उसी तरह वो भी प्रेजेंट होता है, जॉन्डिस होगा, फीवर होगा, ब्लेज होगी, पेन होगी और एनोरेक्सिया होगा, यानी खाना पीने का भूख नहीं लगेगी, डिस्टेस्ट सिगरेट का डिस्टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जॉइंट पेन होता है। और अगर ये 6 माह से ज़्यादा हो तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में चला जाता है जो कि डेंजरस है, लिवर को फील करता है, सोर्सेज हो जाता है, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, खून के उल्टे आते हैं, काले खाने आते हैं, हेपेटाइटिस कार्सिनोमा हो जाता है। इस तरह वो पेशेंट को ये डिस्टर्ब करता है। इसी तरह हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी प्रैक्टिकली ब्लड के थ्रू फैलता है। तो ये मतलब है कि जो ऐसा तरीक़ाकार जिससे ब्लड एक दूसरे को ब्लड के थ्रू लग जाए तो वो इस तरह फैलता है, जैसे मैं पहले बी किस्म से लगता है, इसी तरह वो दो ही मेथड है कि ब्लड के थ्रू फैलेगा और इसका रूट नहीं। हेपेटाइटिस सी जो है वो इसकी एक्यूट स्टेज नहीं होती, क्रोनिक ये होती है। क्रोनिक ये होती है कि जब 6 माह से ज़्यादा वायरस हुई तो उसको हेपेटाइटिस क्रोनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ये क्रोनिसिटी में चला जाता है, स्लोली क्रोनिक वायरस है, कई साल तक ऐसे स्लोली लिवर को खराब करता रहता है, अल्टीमेटली सर्वाइकल हो जाता है। तो सोर्सेज हो जाए तो तिली बढ़ जाती है, पेट में पानी बढ़ जाता है, वायरसेस बढ़ जाती हैं तो उससे खून के उल्टे आ जाती है, काले खाने आते हैं, पेशेंट सीरियस हो जाता है, एडीमा होता है, सूज जाता है मरीज। तो ये इसके मतलब इस तरह ये बीमारी होती है, इस तरह इसका इलाज होता है, ये इसकी प्रोफिलैक्सिस। हेपेटाइटिस डी होता है, हेपेटाइटिस डी उन लोगों को होता है जिन लोगों का हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है ना। तो ये अगर बी का इलाज कर ले, उसकी वैक्सीनेशन कर ले, बी की वैक्सीनेशन है सब लोगों को लगती है, गवर्नमेंट लगाती है, जो बच्चों को लगती है, अब उसका रूल है कि WHO ने प्रोवाइड की हुई है, हर बच्चे को लगती है। जो बूढ़े हैं ज़्यादा एज के उनको रह गई है उनको ये ट्रांसमिट हो सकता है, जो रह गया तो उसका हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन ज़रूर करा लेनी चाहिए, इससे जो बचाव होता है बच जाता है। इसके बाद हेपेटाइटिस ई आ जाता है, इसका भी हेपेटाइटिस ए की तरह यूरोफिकल रूट होता है और ये भी इसी तरह फैलता है जैसे हेपेटाइटिस ए फैलता है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेगनेंट लेडीज़ को ज़्यादा अफेक्ट करता है।
تو اور हेपेटाइटिस सी की एक और बेहतरी आई है कि रिसेंटली पाकिस्तान में इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल हो गई है। तो हेपेटाइटिस ई की फ्रोसेंट ने लॉन्च की है। तो हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन प्रैक्टिकल तो हर एक को लगानी चाहिए, लेकिन सारे नहीं लगा सकते। जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं वो इसको ज़रूर लगवाएं, तो उससे ये है जो भी लगवा लेगा हेपेटाइटिस सी से महफूज होगा। तो उसकी जो जब ये किसी इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों का हेपेटाइटिस ए या ई होता है तो फिर उसमें डेंजरस हद तक सभी लिवर फेलर कर जाता है। तो जब लिवर ज़्यादा फेल हो जाए, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर हो जाए, वो डेंजरस होता है, लाइफ डेंजर में होती है। तो जितनी हिफाजत हो सकती है ये करनी चाहिए, हाथ धोने चाहिए साबुन से, हाथ धो के खाना खाना चाहिए, हर जैसी चीज़ नहीं खानी चाहिए, रेडियो से इस तरह से धो के सही तरह से कटा हुआ फल बाहर से नहीं खाना चाहिए, घर में जा खाना, पानी साफ पीना चाहिए, फिल्ट्रेशन हो, बाल उबला हुआ हो। तो इस तरह ये हेपेटाइटिस सी से बंदा बचता है, ई से बचता है और इसकी ट्रीटमेंट होती है। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है मुख्तलिफ जो मतलब ये इनकी जो हेपेटाइटिस सी है ई है, इसकी तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, आराम करें, रेस्ट करें, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, जूस लें, मीठा लें, आराम करें, रेस्ट करें, आमतौर पर ठीक हो जाए। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले दो वायरस हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जो कि क्रोनिसिटी करते हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस करते हैं, तो अल्टीमेटली सिरोसिस में चला जाता है। तो बी में एंटीवायरल होती है, ई का वायरल दवाई। तो जब उसका खास क्राइटेरिया जो डॉक्टर है वो उसको देखेगा, फिर उसके LFT कराएगा, अल्ट्रासाउंड कराएगा, उसकी PCR से हेपेटाइटिस से DNA वायरस कराएगा, क्वान्टिटेटिव पे कितना इसका लोड है। अगर लोड उसका 2000 से ज़्यादा है फिर उसको एंटीवायरल ड्रग पे हम दे देंगे, ART बढ़ा हुआ, AST बढ़ा हुआ, तो वो काफ़ी देर के लिए देनी पड़ती है, सालों में देनी पड़ती है। नेगेटिव हो जाता है, ये डायनामिक वायरस होता है, मुश्किल से हेपेटाइटिस बी ट्रीट होता है। तो जो जिनमें इलाज हो भी जाए फिर उसका करते रहते हैं टेस्ट और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अगर छोड़े तो बिल्कुल बहुत ही केयर करनी पड़ती है। बेहतर होता है कि ये इसकी कंटिन्यू दवाई लेता ही रहेगा हेपेटाइटिस बी के। अगर वो ये उसमें अगर वो ठीक हो गया तो इसका अगर वायरिमिया उसमें ख़त्म हो गया, वायरस ख़त्म हो गया, तो कंटिन्यू सस्ती सी दवाई है वो लेनी चाहिए। बेसिकली तो कंटिन्यू करनी चाहिए, लेनी चाहिए। डायनामिक वायरस है, ख़त्म नहीं होता। जिनमें छोड़ देते हैं फिर उसका और ज़्यादा ख्याल करें, अगर दोबारा से एक्टिव हो जाए तो फिर दोबारा कोर्स शुरू कर दें। उसका नुकसान ये होता है कि फिर ये रेजिस्टेंट डेवलप करता है, वही दवाई जो पहले इलाज कर रही है वो नहीं कर रही। तो हेपेटाइटिस सी पहले तो इसके टीके होते थे, एंटीवायरल, इंटरफेरॉन, मुश्किल इलाज था, रिस्पॉन्स रेट भी बहुत कम था, टीकों के साइड इफेक्ट भी इंतहा थे, टॉलरेट नहीं लोग करते थे और लंबी देर के लिए देने पड़ते थे, साल तक नहीं, ज़्यादा नहीं। अब एंटीवायरल ड्रग, डायरेक्ट एंटीवायरल ड्रग आ गई हैं तो ईज़िली अवेलेबल है। पाकिस्तान में सस्ती तरीन डोज है, 4-5 हज़ार रुपये का, मैक्सिमम अच्छी दवाई 10,000 तक आ जाती है। ओरिजिनल डे तो 26-27 हज़ार रुपये की आती है 1 महीने की। अदरवाइज ये जो आम लोगों के लिए 3-4-5 हज़ार रुपये की दवाई अवेलेबल है। तो लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के हर अस्पताल में अवेलेबल है, रूरल हेल्थ सेंटर तक अवेलेबल गवर्नमेंट ने की हुई है। अगर ख़ास क्राइटेरिया आ जाता है, डॉक्टर देख लेता है, दवाई मिल जाती है। 3 माह का कोर्स है, दवाई है, गोली है, एक आध गोली खानी है और 3 माह खानी है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसको मॉनिटरिंग कुछ सारी ज़िंदगी उसको भी करना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ें उस पर भी हो जाती है, जैसे लिवर का कैंसर हो जाता है, उसके लिए 6 माह के बाद जिसका इलाज भी हो जाए 6 माह, हर 6 माह के बाद अल्ट्रासाउंड और एक अल्फा बीटा प्रोडक्ट कराते रहते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो पहले से देख लें, ट्रीट हो जाए, रादर दैन अनट्रीटेड बंदा रह जाए तो वो ट्रीट ना हो सके। तो इस तरह इसको ट्रीट मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। अगर वो ठीक हो जाता है, हाँ, monitoring मॉनिटरिंग यही मैसेज है कि अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को जिसने इलाज किया उसके साथ लेजिंग रखें, मॉनिटरिंग कराते 46 मंथ बाद प्रोटीन और अल्ट्रासाउंड कराते रहें। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उसको देख सकें, उसका इलाज किया जा सकता है। हेपेटाइटिस सी
تھینک یو سر، آپ نے قیمتی وقت میں تھوڑا سا ٹائم دیا، اور ہیپاٹائٹس جو کہ بہت مزید مست تھا، کافی حد تک اس کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، لیکن جیسے کہ اس کی مانیٹرنگ بڑی ضروری ہے. آپ نے انفارمیشن دی، اور فیوچر میں میں امید کرتا ہوں کہ کسی اور ٹاپک کے اوپر میری جو ایچوپال سیریز ہے ریگارڈنگ انفارمیشن میڈیکل کمپلیکیشن کے حوالے سے، وہ اس میں آپ میرے ساتھ تعاون کرتے رہیں. انشاءاللہ. تھینک یو سر.